راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، گزشتہ دنوں ایک آدمی ہمارے گھر آیا میرے والد صاحب سے ملنے کے لیے، اسے کوئی کام تھا۔ اب جب میری بھی ملاقات ہوئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ شخص پارک میں میرے ساتھ واک کیا کرتا تھا، والد صاحب ہی کی عمر کا تھا، لیکن اکثر ملاقات ان سے ہوتی تھی تو بڑا اچھا لگتا تھا، تو بڑا خوش ہوئے، ایسے جیسے کوئی بچھڑے ہوئے دوست ملے ہیں۔ پارک میں بڑا پیارا ماحول ہوتا تھا۔ ابھی تو کچھ ماہ سے میں نہیں جا رہا، کیا کہ جناب 3-3 4-4 لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے گروپ بن کے اکٹھے واک کر رہے ہیں، اور جہاں ایک اکیلا آدمی 5 چکر لگائے گا، وہ دوستوں کے ساتھ مل کے 10 چکر لگاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جناب بات چیت چل رہی ہے، شیئرنگ ہو رہی ہے، دکھ درد بانٹے جا رہے ہیں۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پارک میں واک کرنا اور اکیلے بندے کا کھیتوں میں جا کے واک کرنا وہ فرق ہے۔ اس سے زیادہ بندہ فریش رہتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر صرف جسمانی ورزش نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ ذہنی بھی ورزش ہو رہی ہوتی ہے۔ کیسے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں محنت کرتے ہوئے، دوڑ لگاتے ہوئے، ورزش کرتے ہوئے، تو ہمارے دل میں بھی جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ جمع ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم بھی دوڑ لگائیں گے، ہم بھی ایکسرسائز کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ اکیلا میں ہی دکھی نہیں ہوں، ہر بندہ ہی دکھی ہے، اچھا اس کا بھی یہ حل ہے، اچھا میں نے اپنا دکھ دوسرے کو سنایا، اس نے مجھے حل بتایا، پھر اس نے مجھے اپنا دکھ سنایا، میں نے حل بتایا۔ اس طرح سے دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، من ہلکا ہو جاتا ہے، اور سارا دن انسان بڑا ریلیکس رہتا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے پارک میں واک کرنے سے آدمی فریش رہتا ہے۔ اب اس کی ایک بات یہ ہے بھائی کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں، دوستوں سے ملنا، رفاقت رکھنا، دوسروں کی باتیں سننا، انہیں اچھا مشورہ دینا، اور دوسروں کو اپنی باتیں سنانا، ان سے اچھا مشورہ لینا۔ ہم ریلیکس رہیں گے، دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے، اور ہماری روزمرہ کارکردگی میں بھی بہتری آئے گی، اور ہمارے چہرے پر بھی اطمینان رہے گا۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ کیا ہی زبردست بات ہے، اچھی بخشش، کامل انعام، یہ خداوند خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے تو خدا جب راضی ہوگا تو پھر انعاموں کی برسات ہمارے اوپر کر دے گا۔ کیا کمال کی بات ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں حمدیہ گیت۔ خوشی صادقو خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، خوشی صادقو خوشیاں مناؤ، خدا دے عشق وچ ایک گیت گاؤ، خدا دے عشق وچ ایک گیت گاؤ، گیت گاؤ، یہ صادقو خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ اس دے دلانو خوب سجدا، کہ اس دے دلانو خوب سجدا، کہ اس دے دلانو خوب
خوب سجدہ خدا دی کرنی وڈیاری ہمیشہ تسی صادقو خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ نواں ایک گیت گاؤ ہن خدا دا نواں ایک گیت گاؤ ہن خدا دا نواں ایک گیت گاؤ ہن خدا دا بجاؤ حمدیہ گیت ہم نے سن لیا جناب، اور ابھی میں شامل کروں گا حسب معمول آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ فیس بک پر کمنٹس کیے ہیں۔ میری ہی میزبانی میں ہونے والے پروگرام پر غلام سرور بلوچ صاحب نے کمنٹ کیا، جوشوا جی کی میزبانی میں بہت ہی خوبصورت لفظوں سے مزین پروگرام۔ امجد خان کہتے ہیں پروگرام راہ زندگی جوشوا کی آواز میں سنا، کلام پاک اور حمدیہ گیت اور کائنات کی سیر اور لسنرز کے پیغامات سنے، بہت اچھا لگا۔ نوید احمد لکھتے ہیں سپر پروگرام۔ پرنس افضل شاہین کہتے ہیں بہت ہی شاندار پروگرام۔ محمد ارشد ثاقب گوندل کہتے ہیں پروگرام راہ زندگی جوشوا کی آواز میں سنا، کلام پاک اور حمدیہ گیت اور کائنات کی سیر اور لسنرز کے پیغامات بہت اچھے تھے۔ پھر عبد الغفور کیسر صاحب فرماتے ہیں کہ جوشوا جی کی ابتدائی گفتگو بڑی پر اثر اور اصلاحی ہوتی ہے، ہم نے ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور پھر وہ ساتھ ہی لکھتے ہیں ویری گڈ۔ لیاقت علی امان کہتے ہیں اچھا پروگرام۔ محمد ارشد ثاقب گوندل پھر سے کمنٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں بیوٹیفل، کیپ اپ دا گڈ ورک، تھینک یو ویری مچ سر۔ اس کے بعد کال موصول ہوئی محمد اکرم سیال صاحب کی، انہوں نے فرمایا پروگرام راہ زندگی خوبصورت پروگرام ہے، دلچسپ اور معیاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ پھر انہوں نے سرائکی ڈرامے کو بہت پسند کیا اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ جوشوا بھائی پروگرام کمال کا کرتے ہیں، میری طرف سے گلے لگا کر سلام کہنا انور بھائی۔ جی جناب، آپ کا سلام ہم تک پہنچ چکا، بہت شکریہ، ساری محبتوں کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے عادل مشتاق صاحب کی بھی تعریف کی ہے، کہا زبردست پروگرام پیش کرتے ہیں، بہت بہت سلام۔ اس کے بعد عادل مشتاق صاحب کے لیے عبد الغفور کیسر صاحب نے فیس بک پر کمنٹ کیا خوبصورت پروگرام۔ اسرار احمد چوہدری صاحب نے بھی کمنٹ کیا سو پراؤڈ۔ عقیل اسلم المعروف ہنی صاحب، انہوں نے بھی میسج کیا ہے، لکھتے ہیں ایڈمن پی سی آر ایم السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ لکھتے ہیں کہ پروگرام کے شروع میں جو پولس رسول کی زندگی پر بات کی گئی مجھے بہت اچھا لگا، بہت برکت ملی، یہ بات میری روح کی تسکین کا باعث بنی۔ اس کے بعد آپ نے کہا حمدیہ گیت بھی پسند آیا، برکت ملی، امید ہے آپ ہمارے لیے اسی طرح کے اچھے اچھے پروگرام لاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جناب ہنی بھائی، آپ بھی اسی طرح سے ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں۔ عاشق مسیح صاحب ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے، انہوں نے وائس میسج کیا، کہتے ہیں صاحب بڑے پیار نال بڑے آداب نال سلوٹ کر کے سلام پیش کرنے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی۔ آپ لکھتے ہیں پروگرام بہت خوبصورت ہے، کام بہت زبردست کر رہے ہیں آپ، پروگرام سبق آموز ہوتے ہیں، خداوند آپ کو خوش رکھے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اجمل بشیر میتلا صاحب جن کا تعلق بہاول نگر سے ہے فرماتے ہیں پروگرام راہ زندگی سن کر بہت اچھا لگا، عظما یونس کی میزبانی میں بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا۔ اور ابھی اسد مراد صاحب گاؤں کوشک ہے بلیدہ ضلع کیچ سے، لکھتے ہیں آج راہ زندگی پروگرام سنا، عظما یونس کی میزبانی میں وہ بہت اچھا تھا، آغاز کلام مقدس سے ہوا، حمدیہ گیت سنا، سن کر بہت اچھا لگا، شکریہ جناب۔ ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب جن کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، لکھتے ہیں امید ہے کہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم خیر و عافیت سے ہوگی،
हम भी आपकी दुआओं की बदौलत खैर वाफियत से हैं, राह जिंदगी को खूब बाकायदगी और शौक से सुनते हैं। तमाम सिलसिले मालूमाती हैं और अच्छे हैं। शुक्रिया जनाब, आप इसी तरह से हमें फीडबैक देते रहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब आप खत लिखते हैं। उर्दू में भी आपने लिखा है, बड़ा अच्छा है। इंग्लिश में भी आप लिखते हैं, वो भी पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। शुक्रिया जनाब। तो ये थे आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत जनाबे वाला। मैं प्रोग्राम का पता आपको लिखवाना चाहूंगा ताकि आप हमें फीडबैक देते रहें। प्रोग्राम में आप खत लिखकर हमें अरसाल करेंगे हमारे इस नंबर पे, प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। आप हमें कॉल करेंगे हमारे इस नंबर पे 0333 48 25 963। इसी तरह से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे 0305 33 77 310। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा जनाब, हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। तो प्रोग्राम में हम आगे बढ़ रहे हैं जी। सिलसिला है कुदरत के करिश्मे, जिसमें नमक की अहमियत पर बात की जा रही है। आइए मिलकर सुनते हैं। खुदा की बनाई हुई हर एक चीज के अंदर बेशुमार फवायद मौजूद हैं। बस जब हम इन्हें जान लेंगे तो हम इन चीजों से फायदा ही फायदा उठा सकेंगे। आज हम कुदरत के करिश्मे में नमक के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में दुनिया की नमक की दूसरी बड़ी कान खेओड़ा में मौजूद है और इसके बारे में कहा जाता है कि जब सिकंदर आजम 320 कबल मसीह में यहाँ रहने आया तो उसके घोड़े इसके पत्थरों को चाटते हुए नजर आए और फिर जब उसके मुलाजमों ने इन पत्थरों को चखा तो उन्हें वो जायके में नमकीन महसूस हुए। यूं उस इलाके में नमक की कान दरियाफ्त हुई। पाकिस्तान से ये नमक दीगर कई मुमालिक में भेजा जाता है। खुदा ने नमक में कुदरत का एक बहुत ही बड़ा करिश्मा छुपा रखा है। इसको खुदा ने इलाज के तौर पर भी रखा है। नमक हमारे जिस्म में मादनियात की कमी को पूरा करने का काम करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी नाकारा गैस को हमारे जिस्म से निकालने में मदद देता है। हमारे दिमाग के बेहतर तौर पर काम करने के लिए सोडियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सोडियम की मिकदार अगर हमारे जिस्म में कम हो जाए तो इसका सारा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। नमक हमारे जिस्म को बेरुही से बचाता है। गर्मी की वजह से हमारे जिस्म से बहुत ज्यादा पानी खारिज हो जाता है और हमारा जिस्म खुद अपना दर्जा हरारत कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए नमक और शुगर मिलकर ये काम करते हैं। नमक एक कसीरुल इस्तेमाल शय है। ये इंसानों और हैवानों दोनों की रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में शामिल है। नमक इस लिहाज से दुनिया की वाहिद और अनोखी चीज है कि पानी में घुलाने से ये माया की सूरत इख्तियार कर लेता है और अगर इसे खुश्क कर लिया जाए तो ये पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। इसी तरह नमक में बैक वक्त माया और ठोस दोनों हालतों में ढलने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर इंसानी खून की बात की जाए जिस पर जिंदगी का सारा दारोमदार है तो इंसानी खून में भी 0.9% नमक मौजूद होता है। इंसानी खून के निजाम को बरकरार रखने के लिए नमक की खुसूसी अहमियत है। खानों में जायका पैदा करने के अलावा नमक की अद्वियाती अहमियत भी है। नमक निजाम इंहजाम को दुरुस्त रखता है। ये बलगमी अमराज में भी फायदा पहुंचाता है। मुनासिब मिकदार में नमक का इस्तेमाल ज़हन की कुव्वत बढ़ाने में मदद देता है और ये खट्टी डकारों को भी रोकता है। नमक पेट के कई अमराज में फायदेमंद है। जरासीम कुश होने की वजह से इसे दांतों पर मलने से दांतों के अमराज में भी अफाका होता है और अगर नमक को सरसों के तेल में मिलाकर दांतों पर लगाया जाए तो दांत कीड़ा लगने से महफूज रहते हैं। नमक जिस्म पर होने वाली कई किस्म की सोजन को दूर करने की सलाहियत रखता है और नमक और प्याज को अगर फोड़े पर बांधा जाए तो फोड़ा फट जाता है। हलक के अमराज में नमक के गरारे करना भी बहुत मुफीद साबित होता है। ये बात भी पेशे नजर रहे कि नमक सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता बल्कि इसके 1400 के लगभग दीगर तिबी और सनती इस्तेमालात भी हैं। खाने में तो कुल पैदावार का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नमक को खुराक महफूज करने, कागज साजी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल्स की तैयारी, शीशा साजी और साबुन और डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने जैसे बेशुमार कामों में लाया जाता है।
ठंडे ममालिक में मादनी नमक की 51% मिकदार शाहराहों पर मौजूद बर्फ को पिघलाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पर 40% नमक बड़ी सनतों में, 40% सड़कों पर बर्फ पिघलाने और 9% नमक छोटी सनतों में इस्तेमाल होता है, जबकि सिर्फ 1% नमक खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक नमक दमे की एलर्जी में बहुत मौसर साबित होता है। गले और सांस की नालियों की सोजिश नमकीन पानी की भाप से दूर हो जाती है, इसलिए सांस के मुख्तलिफ अमराज में नमक के ज़रात को गले में उतारने से तकलीफ में बेहद अफाका होता है। यूरोप की निस्बत अमेरिका में नमक के जरिए इलाज का रुझान कम है, ताहम वो भी दमे का इलाज करने के लिए सोल्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस बात की दलील है कि वहाँ भी ये इलाज आहिस्ता आहिस्ता फरोग पा रहा है। सोल्ट पाइप या इनहेलर्स सांस की बंद नालियों को खोलने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कदीम यूनान में भी नमक के इस्तेमाल से बीमारियों का इलाज करने के शवाहद मिलते हैं, और अगर नमक की कान में चंद रोज क़याम किया जाए तो इससे न सिर्फ इंजेक्शन लगवाने की तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है, बल्कि इसके कोई मुज़र असरात भी नहीं होते। इसीलिए बरतानिया के शहरी दमे की एलर्जी के इलाज के लिए यूरोप के उन ममालिक का रुख करते हैं जहां नमक की कानें मौजूद होती हैं, और यहाँ पर दमे के इलाज के लिए सहूलतें फराहम की जाती हैं। ताहम ऐसे लोग जिनके लिए ये सफर मुमकिन नहीं होता, वो अपने घरों में सोल्ट लैंप का इस्तेमाल करते हैं। ये सोल्ट लैंप एयर प्यूरिफायर का काम देते हैं। रात को कमरों में सोल्ट लैंप जलाकर सोने से पुरसुकून नींद आती है। जब कमरों में सोल्ट लैंप जलता है तो ये कमरे की नमी को जज़ब करके माहौल को खुशगवार बना देते हैं। नमक के बने हुए इन लैंप से जब रोशनी छन छन कर गुजरती है तो माहौल बैक्टीरिया से पाक हो जाता है। इससे सांस की नालियों में मौजूद सोजन, सुकड़न और बंदिश दूर हो जाती है। दुनिया में हिमालय के पहाड़ी सिलसिले का नमक बेहतरीन नमक गर्दाना जाता है। यहाँ नमक के 1290 मील तवील पहाड़ मौजूद हैं, जो आइंदा सैकड़ों साल की जरूरत के लिए भी काफी हैं। माहिरीन ने ये बात तस्लीम की है कि हिमालय का क्रिस्टल साल्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन साल्ट है। सोल्ट लैंप्स मुख्तलिफ रंगों में बनाए जाते हैं, जिनमें दूधिया, गुलाबी, सफेद और नारंगी रंग नुमाया है। सोल्ट लैंप और नमक की ईंटें बनाने के लिए बड़े बड़े नमक के टुकड़ों को कारखानों में लाया जाता है और माहिर कारीगर इससे मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं। बैरूने मुल्क में इनकी बेहद मांग है। गर्ज ये कि नमक हमारे लिए खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान नमक की कानों को तलाश करता है और उसे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल में लेकर आता है, और इंसान के लिए वाजिब है कि खुदा की इस नेमत का इस्तेमाल करते हुए वो हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करता रहे। खुदा की शुक्रगुजारी के हमारे मुल्क में नमक की बहुतात है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने इसी तरह से और भी बहुत सी नेमतों से हमारे मुल्क को नवाजा है। मैंने जिस तरह से आगाज में बात की कि शेयरिंग जो है, रफाकत जो है, वो किस तरह से हमारी सेहत की बेहतरी का बायस बनती है, लेकिन इस हवाले से खबरदार रहना है कि अक्सर नौजवान मीलों दूर बैठे किसी एक शख्स से अपनी बातें शेयर करता है, टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर। अब वो समझ लेते हैं कि जिससे वो बातें शेयर कर रहे हैं शायद यही एक आदमी पूरी दुनिया में लायक है कि इससे हम अपनी बात शेयर करें और ये हमारे साथ मुखलिस है। ऐसा नहीं होता, बाद में वो धोखा खाते हैं। ऐसा शख्स जो है, जब वो बात कर रहा होता है तो उसको अपने आसपास के लोग, अपने आसपास के दोस्त, कजन्स, वो सब के सब जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, वो इस काबिल नहीं लगते कि मैं इनसे कोई बात करूं। अच्छा, ऐसे शख्स का चेहरा बड़ा अजीब हुआ होता है, वो फालतू में डरा डरा रहता है। शादी हो, ब्याह हो, आप देखेंगे ऐसा नौजवान जो है एक साइड पे लग के खड़ा होगा, वो अपने मोबाइल पे टिक 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 लगा होगा, या उसने जो है वो हैंड्स फ्री लगाई होगी और वहां पर वो बात कर रहा होगा मीलों दूर किसी के साथ। और भाई, अपने बहन भाई जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, अपने बचपन के दोस्त अच्छे नहीं लग रहे, और अपने वालिदैन या अपने बड़े बुजुर्ग अच्छे नहीं लग रहे। जब उसके साथ सारी बातें कर रहे हो टेलीफोन पर, तो कल को धोखा मिलेगा, फिर पछताना पड़ेगा। डिप्रेशन खत्म नहीं होगा, बल्कि डिप्रेशन और बढ़ेगा। इससे ये जरूरी है कि हम रिश्तों को उनकी पूरी अहमियत दें,
दोस्तों के साथ मिले जुलें, बातचीत करें, खुश हों, खुदा खुश होता है। बुजुर्गों के साथ भी मिलें, बातचीत करें और बातचीत सुने भी, और अपने से छोटों के साथ, बच्चों के साथ भी थोड़ा वक्त गुजारें। ये जिंदगी की बहुत बड़ी बरकत है और देखेंगे फिर हमारे चेहरे पे कैसा कमाल का इत्मीनान आता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, चलेंगे सिलसिला हादसात से बचाव की जाने। जी जनाब, प्रोग्राम हादसात से बचाव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे कि दहशतगर्दी जैसे हादसात के जो असरात हैं उनसे निपटने के लिए जो पहले से तैयारी होती है वो किस तरह से की जाती है। सैफ साहब, हम एक लफ्ज सुनते हैं मॉक एक्सरसाइज। मॉक एक्सरसाइज बहुत से लोग जानते होंगे और मैं समझता हूं कि ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे सामईन को मॉक एक्सरसाइज के बारे में बताएं जो दहशतगर्दी जैसे वाकयात से निपटने के लिए जो है वो की जाती है। जी बहुत शुक्रिया जी। असल में मॉक एक्सरसाइज से मुराद ये होता है कि हादसा होने से पहले हम एक फर्जी हादसा रूनुमा करके, एक फर्जी वाकया करके, उसके बाद उससे बचने का तरीका और उस दौरान में किसने क्या एक्ट करना है उसका तरीका सिखाया जाता है। जैसा कि मैं दहशतगर्दी के मामलात में 15 को कॉल करता हूं कि मुझे बताएं, आकर एक फर्जी एक दहशतगर्द बनाएं। वो अपना एक फर्जी 2-3 दहशतगर्द बनाएंगे जो बिल्डिंग में एंटर होंगे, फिर हम उसका सायरन बजाएंगे, लोगों को वहां से निकलने का तरीका बताएंगे, वो बकायदा दहशतगर्दों को काबू करने का तरीका बताएंगे। अब देखें ना, एक मिसाल है कि अगर एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है तो दहशतगर्द खड़ा है, अब एक बंदा पीछे छुपा हुआ है, तो वो पुलिस वाला उसे देख रहा है, वो उसे बताना चाहता है कि ये दहशतगर्द एक है कि दो है, उनके पास हथियार किस किस्म के हैं और उनका मुंह किस तरफ है। तो वो दूर से किस तरह इशारा करके लोगों को बताएगा, पुलिस वालों को या मीडिया को या जो भी लोग उसे देख रहे हैं उनको किस तरह से बताएगा कि अंदर कितने लोग हैं, फलां कितने हैं, उसका ध्यान, मतलब इस तरह की चीजें जो ना ये मॉक एक्सरसाइज में आ जाती हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इनके बगैर हमारे अदारे जो हैं वो कभी भी एक्शन नहीं ले सकते। अदारों को कामयाब बनाने के लिए अवाम का ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। अब देखें ना, एक मिसाल है, चोर भागता हुआ जा रहा है, पुलिस पीछे आ रही है, अब हमें पता ही नहीं हमने क्या करना, हम तो पीछे हट जाएंगे। पुलिस अगर ट्रेनिंग देगी कि अगर ऐसा वाकया हो तो पुलिस वाला इशारा करता है कि पकड़ो इसको, या वो इशारे से कहता है कि इसको काबू करो, तो हम और कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी गाड़ी उसके आगे जाके टकरा देते हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ चीज उसकी तरफ फेंक देते हैं, हम अगर पैदल है उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये चीजें एक्सरसाइज में, मॉक एक्सरसाइज में आ जाती हैं। और इसके लिए तमाम अदारे 1122 में ऐसे अदारा एजुकेशन यूनिट मौजूद है, आप उनको कॉल करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आएंगे और एक मॉक एक्सरसाइज करवाएंगे आपके लोगों को, आपके अदारे को, जो भी वहां पे लोग हैं उनको तरीकाकार बताएंगे कि हादसा की सूरत में आपने किस तरह से बिहेव करना है और आप किसी की कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे हमने CPR मेथड पढ़ा था और इस तरह जो है ब्लीडिंग के ऊपर पढ़ा था हमने कि ऐसे जो भी वाकयात होते हैं उन पे। इसी तरह फायर ब्रिगेड का अदारा मौजूद है, फायर ब्रिगेड पहुंच रही है 20 मिनट बाद या 25 मिनट बाद, तो हमें उस दौरान में तो आग को बुझाने का तरीका पता होना चाहिए, इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए। इसी तरह जो है हमारी ट्रैफिक पुलिस है, उनका एक एजुकेशन यूनिट मौजूद है। एजुकेशन यूनिट क्या करता है कि वो लोगों को जाकर ट्रैफिक के मामलात, ट्रैफिक के बारे में जितने हादसा हो सकते हैं उनकी मुमकिन आगाही देता है, उनके बारे में बताता है कि आपने किस तरह कैसे करना है। और अगर फर्ज करो कोई दहशतगर्दी होती है, कोई जंग होती है, उस दौरान में किस तरह ट्रैफिक को बहाल रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर फर्ज करें सड़कें ब्लॉक है तो 1122 कैसे पहुंचेगी, पुलिस कैसे पहुंचेगी, फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगी। तो ये ट्रैफिक को भी उस हादसा की सूरत में बहाल रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने खुद देखा, हमारे इधर समुद्री रोड के ऊपर एक वाकया हुआ, हादसा हुआ। अब वो लोग इतनी तादाद में इकट्ठे हो गए कि वहां पे वो जो रेस्क्यू वाले हैं उनको पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था, और हत्ता कि वो कितनी दूर पैदल लोगों में से घुसते घुसते वहां पहुंचे और गाड़ी उनके पीछे खड़ी है जिसमें सारा सामान है। तो ये हमें उनको अवेयरनेस देनी है कि आपने किस तरह से वहां से बचना है। लिहाजा ये जो मॉक एक्सरसाइज होती हैं ये अवेयरनेस सेशंस होते हैं, और ये मेरे ख्याल में हर अदारे में, हर जगह पे, इवन आप अपने घर के फैमिली मेंबरान को लेकर 1122 के पास चले जाएं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, 15 वाले बहुत कोऑपरेटिव, उन्हें कहें जी कि अगर कोई दहशतगर्दी हो तो मेरे बच्चों को ट्रेनिंग दे, मुझे ट्रेनिंग दे, हमें किस तरह का बिहेव करना चाहिए, अच्छा, हमें पुलिस को कॉल कैसे करनी चाहिए, हमें पुलिस को कैसे बताना चाहिए। बाज कात कोई देखे ना, साथ वाले कमरे में वो खड़ा, अगर मैं कॉल करूंगा तो उनको कैसे पता चलेगा मुझे उस सूरत में क्या करना चाहिए। ये चीजें सारी हम उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनका फर्ज है हमें ट्रेनिंग देना। हमारी अवेयरनेस नहीं है। इवन कि आपने कभी देखा होगा कि बैंकों के बाहर लिखा होता है कि अगर आपकी रकम 3 लाख से ज्यादा हो तो पुलिस को कॉल करें, वो आपके पैसे आपके मतलूबा जगह तक पहुंचाने तक के जिम्मेदार है और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इवन ये जो हाईवे पुलिस है
وہاں پر کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو ڈینجرس ہوتے ہیں. جیسے لاہور سے آتے ہوئے راستے میں ایک پھاٹک ایریا آتا ہے جہاں پہ بالکل سنسان ہے, کوئی جگہ نہیں ہوتی, کوئی بندہ نہیں ہوتا. تو ایسی جگہوں پر ہائی وے پولیس کو کال کریں, آپ انہیں کہیں ان کی گاڑی آپ کے ساتھ آئے گی اور آپ کو آپ کی گاڑی کو لے کر وہاں تک چھوڑنے کی پابند ہے. اچھا. ہاں جی, لیکن اور کوئی اس کے چارجز نہیں لے سکتے, قانون میں یہ لکھا ہوا ہے. اب ہمیں قانون سے کیونکہ آگاہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں قانون کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور ہمارے قانون دانوں کو چاہیے, جو ہمارے مطلب وکلاء حضرات ہیں یا دوسرے تیسرے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں اس کی آگاہی دیتے رہا کریں. تو ایون جیسے ابھی چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میں آج ہی صبح دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ اگر آپ کا 2 مہینے کا بل نہیں ادا کیا اور آپ کا میٹر اتار کے لے گیا وہ جو واپڈا والا ہے, تو اس کے خلاف وہ 2 دفعہ بتائی کہ فلاں فلاں دفعہ کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے. اب کیونکہ وہ میٹر تو آپ کا ہے, ہم نے میٹر کے پیسے پے کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسے اتار نہیں سکتے کسی بھی صورت, لیکن قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں, روز ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کے بارے میں. تو بہرحال یہ ساری چیزوں کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کے بارے میں علم ہو جو ہماری سیفٹی کے تعلق سے ہیں, اور حادثے سے پہلے اس کی مناسب تیاری ہونی چاہیے, اور بچوں کی اور خاندان کی اور ہماری خود اپنی بھی تربیت ہونی چاہیے, تاکہ ہم حادثے کے بعد جو ہے وہ نہ پچھتائیں, بلکہ حادثے سے پہلے جو ہے اس کے لیے تیار ہوں, اس حادثے کے کم سے کم نقصانات سے 2-4 ہوں. بہت شکریہ آپ کا. جی جناب, ہمیں حادثات سے محفوظ رہنا ہے. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ہم دعا کریں گے. خدائے قادر مطلق, میں درخواست کرتا ہوں کہ سارے عزیزوں کو بڑی برکت بخش دے. ہمارے جتنے لسنرز ہیں نام بنام ہر ایک کو برکت دے, اور ان کی آل اولاد کو بھی برکت دے. خداوند ان کو ہمیشہ سنبھالے رکھنا, ان کو بڑی ترقی عطا فرمانا. تیرے لوگ ہیں اور تو ان سے محبت کرتا ہے. ہمیشہ خداوند اپنی بخشش کے دروازے ان پر کھلے رکھنا. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. لیجئے جناب, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.